Okay. So in the last class we have discussed about the vectors and the integration a little things about integration, right? In today's class we are going to actually start the chapter work, power, energy. Okay. So देखो, I'm assuming that you know a little about the vectors, ठीक है? Again I'm telling you, because अगर vectors और integration नहीं आएगा ना, see, करने के लिए we will be discussing all of the chapter by itself, but the problem is that you will not be able to solve the questions based on that as the time proceeds, huh? So for that you must be able to understand, you must be able to recognize the integration, how to use it and what's the use of it and all that stuff. I know that for the NEET students the maths is not there, so if the maths is not there you're not going to see about the limits, about the differentiation, about the integration. तो पूरा का पूरा calculus से you are going to stay away from that, okay? But if possible na, you just try to do some questions by your own selves. If you want you can ask me as well, so I'll send you the questions, but the important thing is that you must be knowing a little about the integration and all that stuff. Okay, so work, power and energy is the name of the chapter. And one more thing, I can say that this chapter, work, power, energy, it is probably the only chapter that, or it is probably the first chapter you might be finding a little more comprehensive, you know. तो अच्छा खासा डिफिकल्ट तुम लोग को दिखेगा ये चैप्टर दिखने के लिए, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्टेप्स गोइंग ऑन इन हियर. Okay, you have work energy theorem, you have the conservation of energy, you have multiple conversations, you have various types of pura ka pura physics is going to revise over here, huh? So you need Newton's laws as well, you need friction as well, you need all the types of forces, spring force, string force, you need all of the concepts, huh? In general. So the extension of this subject or of this chapter is seen everywhere in the field of physics, huh? If you go to electromagnetism, you will be seeing the concept of this chapter over there as well. If you go to electrostatics, you will be also finding the work done by positive charge. If you go to thermodynamics and KTG, you will also be finding the work done by the gas, on the gas and all that stuff. Okay, so chemistry के अंदर भी you have some information about some application of this work, power, energy का concept. So जहाँ तक, as long as the chapter is concerned, I will strongly recommend all of you to make perfect notes of this chapter. ठीक है? I strongly recommend all of you to continuously revise this chapter throughout the educational years, huh? Because this chapter is the backbone of physics, you can say that. This chapter and electrodynamics का electrostatics chapter, they are like the backbones of physics, huh? पूरा का पूरा physics ही इन chapters के ऊपर ठहरा है. Even Newton's laws, तो न्यूटन्स लॉज के अंदर भी अच्छा खासा ये है, वेक्टर्स भी कह सकते हो तुम लोग. तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यू कुड एवर कम अक्रॉस. So it's solely and solely your responsibility to be in touch with the topics and to be revising all of these topics continuously. समझ में आ रहा है? Okay, anyways, now we will be starting with the main chapter. चलो, अच्छा, the terminology over here is work. ठीक है? Akshara, tell me, what do you understand by the word work? अच्छा, पहले हुआ है तुमको ये चैप्टर 9th क्लास में है वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर? Yes sir. ओके, ठीक है. एनीवे, चलो, आई डोंट वांट, ठीक है. सी, व्हेन यू आर अटेंडिंग द चैप्टर ओवर देयर एंड हियर एज वेल, तुम लोग को अच्छा खासा डिफरेंस देखने मिलेगा. यू आर गोइंग टू सी द एक्सट्रीम डिफरेंस बिटवीन द क्लास 9th एंड यहाँ का सिलेबस. अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस क्लास, you have to erase all of those things you have learned. Actually erase करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा. बट इफ़ आई आस्क द डेफिनेशन ऑफ वर्क, डू नॉट स्टिक मी, मेरे को चिपकाओ मत वो पुराना डेफिनेशन जो तुमने सीखा है ना. आई वॉन्ट यू टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. तो आई एम अज्यूमिंग you should also assume that you don't know anything about this chapter, huh? Because I don't know if your concepts are clear over there or not. Understanding? Yes. So when I say the word work, what comes into your mind, Akshara? All of you. To do something. To do something. So in general, sleeping is also a work, getting up is also a work, right? ना, स्कूल जाना, लिखना, पढ़ना, ये भी तो सारे काम के टाइप्स में आते हैं. करेक्ट ना अक्षरा? है ना? बट द इशू इज दैट दूसरे जो काम है कृष्णा, लाइक तुम मान के चलो तुम लोग स्कूल में जा रहे हो या इन जनरल तुम थिंक कर रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो कुछ ना कुछ, तो थिंकिंग इज ऑल्सो वर्क, राइट सौम्या? गेटिंग एंग्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, ठीक है. स्टेइंग काम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग. बट माई क्वेश्चन इज दैट आर दोज वर्क्स काउंटेबल? मतलब
कि तुम अगर थिंक कर रहे हो तो जो तुमने वर्क किया है, क्या उस वर्क को मैं काउंट कर सकता हूँ in terms of numbers? No. Can I do algebra with that? Can I implement that in real life? नहीं ना, understanding. So physics needs something that is compatible with mathematics. समझ में आ रहा है? Because mathematics is the language of physics. समझ में आ रहा है? So physics के अंदर हम ऐसी टर्मिनोलॉजी ही देखेंगे जिनका रियल लाइफ में कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस बनता है, जिनको हम मैथमेटिकल वे में सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिनके साथ में हम मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ डील कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, इमोशंस, एंगर, डर, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती. अंडरस्टैंडिंग ना? बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैनॉट एक्सप्रेस देम इन मैथमेटिक्स, यू कैनॉट डू एनीथिंग विद दोज थिंग्स. बस तुम फील करके छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग? हाँ, साइकोलॉजी में जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें डील होंगी. वहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि मेरे को 2 न्यूटन या 2 किलो का मेरे को डर है. अंडरस्टैंडिंग? वहाँ पे नंबर्स से नहीं बनता. साइकोलॉजी हो गया. अंडरस्टैंडिंग? वहाँ पे लोग बस, और उसके बाद में तुम लोग बस वो बस जानते हैं कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में. अरे यार, मैं कल जा रहा था, अचानक से मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया. सो ये तुम डॉक्टर को बता सकते हो, साइकेट्रिस्ट को बता सकते हो, बट इफ़ यू गो एंड इफ़ यू सिट नियर अ फिजिसिस्ट और तुम उसको बताओगे कि मैं बैठ रहा था और मुझे 2 यूनिट का गुस्सा आया. अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ सेंसलेस स्टेटमेंट. समझ रहे हो कृष्णा? So in physics, we always try to deal with the numbers, with magnitudes of something, and then we also always try to express the things in mathematical form. Understanding? So अब work जो है, work as this chapter is a part of physics, so we will try to keep our discussion limited towards the mathematical definition of work itself. समझ रहे हो अक्षरा? अब समझने की कोशिश करो, ठीक है? इमेजिन करो, मैं ना अभी रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ. सो आई हैव 2 सिनेरियोज वेरिन, these are the 2 scenarios, ठीक है? wherein there is this person. अब इसको ना जस्ट दिस पर्सन इज देयर, और इस पर्सन को ये ब्लॉक पुश करके आगे लेके जाना है, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग दैट. तो मान के चलो ये जो पर्सन है, ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाता है आगे के साइड में. व्हाट विल हैपन कृष्णा अगर ये फोर्स लगाएगा एफ? द ब्लॉक विल move. Okay, I'm assuming the smooth surface wala scenario. Okay. Now the same scenario is there, but this time this is a wall, ठीक है? And this is the kid, and he wants to push the wall. What will happen, Krishna? The block will not move, right? Yes, the block will not, the wall will not move. The boy will go back. You can also say that there is this action reaction force. So if the surface is smooth, then definitely the boy will also move back. But I'm assuming that, चलो ठीक है, नीचे वाले सिनेरियो में कोई ऐसा एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स तो लग रहा है, बट फ्रिक्शन का फोर्स हम अज्यूम करके चलते हैं. अक्षरा, my main question is that when the boy was pushing this block, how many forces were acting on this block? How many? Three forces. 3 forces. What are the 3 forces, Somya? Gravitational force. So there are the 3 forces. Boy. Okay. And normal. Friction force. Okay, नहीं, फ्रिक्शन नहीं है. अज्यूम करो स्मूथ सरफेस. चलो ठीक है, एनीवेज फ्रिक्शन फोर्स मान के चलो. तो देर आर एक्चुअली 4 forces एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. The first force is the gravitational force. You can also call it as mg. The second force is the normal force offered by the ground on the block in the upward direction. The third force is the force applied by the block, and the fourth force is the frictional force. बराबर ना कृष्ण? Yes. अब मुझे बात बताओ, my second question to you is that ये जो मोशन हो रहा है इस ब्लॉक का, ये जो भी है, ये डब्बा है, how many forces are responsible for this motion? मतलब ये मोशन से डायरेक्ट रिश्ता किस किस फोर्स का है? हाउ मेनी फोर्सेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस टाइप ऑफ मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? अक्षरा, कैन यू टेल मी? Frictional force. Okay, friction force is one of the force, and then there is one more force. Force applied by By the boy, right? Very good. So these are the 2 forces which are directly linked with the motion. The first force being the force applied by the boy, and the second force being the friction force in the opposite direction, right? Now my question to you is that Akshara, ये जो force है, the force applied by the block, is it supporting the motion or is it opposing the motion?
Opposing the motion. I'm telling you the question once again. The force exerted by the boy is supporting the motion or opposing the motion? Supporting the motion. Supporting the motion. And the friction force, is the friction force supporting the motion or opposing the motion? Opposing the motion. Opposing. Very good. Chalo, ठीक है. Now the question is that if the block is moving in the horizontal direction, in the horizontal direction there are the two forces acting on the block. The first force being the force exerted by the boy, the second force being the friction force which is acting in the opposite direction towards the force. Okay, now there are the two more forces, the first force being the mg force or the gravitational force in the downward direction, and the second force being the normal force which is acting in the upward direction. Right, now my question again to you is that ये जो दो forces लग रहे हैं mg force और normal force, आर दिस फोर्सेस डूइंग समथिंग, लाइक क्या ये फोर्सेस की वजह से कोई मोशन हो रहा है अक्षरा? नो. अंडरस्टैंडिंग ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इन फोर्सेस की वजह से कोई मोशन हो ही नहीं रहा, कैन आई सिंपली इरेज दिस फोर्सेस फ्रॉम द सिनेरियो? राइट. तो अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी फोर्स को सिग्निफिकेंस कब आता है अक्षरा? व्हेन the effect of that force is seen. Understanding? In if you see, again I'm telling you, all of these things are valid only and only if you see the scenarios from the work power energy का point of view. Understanding? तो तुम तो बोलने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो नीचे वाले सिनेरियो में जो बंदा है ये वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट द स्टिल द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नॉट सीन. सो कैन आई सिंपली इरेज द फोर्स ऑफ द बॉय? So see, basically I want to tell you that there are two things that we have to see. The first thing is the force and the second thing is the effect of force. Effect of force कह लो या in general force की वजह से क्या आएगा? Acceleration. Acceleration से क्या create होगा अक्षरा? Velocity. Velocity से क्या बनेगा? Distance या displacement, right? तो effect कह लो या in general displacement कह लो. Understanding? Now based on that some standard conclusions are being made. Okay, तो अब एक बात याद रखना, दोनों में से अगर एक भी ज़ीरो है, ठीक है, अगर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, या फिर फोर्स ही नहीं लग रहा, समझ रहे हो ना, अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो है तो वी विल सिंपली नॉट सी द सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी. समझ रहे हो? सो वेन एवर वी हैव टू सी वर्क पावर एनर्जी, वी हैव टू सी इफ देर इज़ अ फोर्स. Okay, the force is there. The second scenario that we have to see is that is there the effect of the force acting, मतलब क्या उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है. अगर ये दो कंडीशंस मैच हो रही हैं देन एंड ओनली देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस चैप्टर. समझ रहे हो? तो इन जनरल अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा देन तो बात ही ख़त्म हो गई. राइट, वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग अबाउट दिस थिंग्स. और अगर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है उस ऑब्जेक्ट का तो सिंपली बात खत्म. वी विल नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द वर्क डन बाय दैट फोर्स. समझ रहे हो कृष्णा? तो यहाँ पे ऑल्दो द बॉय इज पुशिंग द वॉल बट द इफेक्ट ऑफ द बॉय इज नॉट सीन. राइट ना? सो सिंपली हम क्या बोलेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट द वर्क इट सेल्फ. राइट, बिकॉज द वर्क इज जीरो इट सेल्फ. तो अब बेस्ड ऑन दैट एक बात याद रखो, ठीक है अक्षरा, इमेजिन दिस इज़ अ पर्सन विच हु इज़ कैरिंग, जो अपने सर के ऊपर एक ट्रॉली का बैग लेके जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग? ऐसे. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा है ये अच्छा अपने हाथों से पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है, इस ट्रॉली को. सो ही इज़ होल्डिंग द ट्रॉली लाइक दिस. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट लेट्स से द मास ऑफ द ट्रॉली इज सफिशिएंटली लार्ज, लेट्स से 50 kgs. Soumya, वेयर इज द mg फॉर द ब्लॉक इज एक्टिंग? डाउनवर्ड्स. अब जो बंदा है ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा है? Upwards. Very good. Now the next question is that in which direction is the displacement of the person is happening? Right side. So अक्षरा ध्यान से सुनना, ये पर्सन ने ऊपर के साइड में लेट से F फोर्स लगाया है, ठीक है. कुछ देर के बाद में इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ दैट डिस्प्लेसमेंट वाज फाउंड आउट टू बी 30 मीटर्स. राइट. तो मुझे एक बात बताओ अक्षरा, क्या इस F की वजह से कोई चेंज आया है इस ब्लॉक के पोजीशन में वर्टिकल फोर्स के? नहीं. तो अगर कोई चेंज आया ही नहीं है, अगर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज जस्ट नॉट सीन, देन वी विल सिंपली से दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो.
समझ रहे हो? तो देर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग इज वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स, नॉट बाय अ पर्सन इन फिजिक्स. अंडरस्टैंडिंग? वर्क इज डन बाय अ फोर्स. वर्क इज डन बाय अ फोर्स. पहली चीज, समझ रहे हो? सेकेंड चीज, इफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स is zero or not seen, if the effect of the force is not seen, then what we say about the work? Then the work is zero, right? तो अगर वर्क जीरो है, कौन से फोर्स का सोनिया? सी अगेन आई एम टेलिंग यू, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वर्क डन बाय द फोर्स. ठीक है? अब कोई बोल सकता है कि चलो यार ठीक है, मैंने कितना वर्क डन किया वो कैलकुलेट करो, बट मैंने नहीं किया. मैंने जो फोर्स लगाया है ना, उस फोर्स ने वर्क किया. समझ रहे हो? सो इन जनरल वेन एवर वी टॉक अबाउट द वर्क इन फिजिक्स, वी टॉक अबाउट द वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स. तो ये जो वर्क है फिजिक्स के लैंग्वेज में और रियल लैंग्वेज में, जो दो वर्क के डेफिनेशंस हैं, दोनों अलग हैं. समझ रहे हो कृष्णा? फिजिक्स के अंदर वर्क इज नथिंग बट अ प्योरली वेल डिफाइंड मैथमेटिकल क्वांटिटी. समझ रहे हो? एंड इन रियल लाइफ, if it can be expressed in mathematical way or it cannot be expressed in a mathematical way, both mean the same. हम उसको वर्क ही कंसिडर करेंगे. अगर तुम बैठे बैठे सो भी रहे हो तो भी तुम काम कर रहे हो, राइट ना? अच्छा ठीक है, उसको काम नहीं बोलेंगे. सोया पड़ा है, काम कुछ नहीं कर रहा बोलते ना. So anyways, it depends upon the situations, but in physics, whenever we talk about work, we talk about a perfectly mathematically expressible quantity. समझ रहे हो? अब work होता क्या है, याद रखो. हाँ अक्षरा, why did we say that the work done by the force F is zero? Because effect of the force is not seen. अच्छा, ये जा तो रहा है ना ये आगे, कैसे नॉट सीन बोल रहे हो फिर? सुनिया, क्या ये जो ब्लॉक आगे नहीं जा रहा पर्सन के सर पे का? फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट सीन कैसे बोल रहे हैं हम? टेल मी सर. Sorry, But not. can you repeat it again, Soumya? So the person is. Any more answers, Akshara? I can't hear you, Soumya. I don't know if there's a network problem for your side or not. So see, मेरे को एक बात बताओ कृष्णा. There are two directions. The first one being the horizontal direction, the second one being the vertical direction. In which direction is the force acting, vertical or horizontal? Vertical. In which direction is the displacement happening, in a vertical or horizontal? Horizontal. तो क्या ये दोनों डायरेक्शंस मैच कर रहे हैं? No. क्या इन दोनों डायरेक्शंस का कोई लेना देना है आपस में? No. तो जो वर्क हॉरिजॉन्टल में हो रहा है उसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा. अगर वर्टिकल में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के लिए वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज जीरो. अंडरस्टैंडिंग? सो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, याद रखो, फिजिक्स के अंदर वर्क इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सिंपली डिस्प्लेसमेंट. याद रखो. बट देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस टू दिस केस एज वेल. जो फार्मूला तुमको 9th पे सिखाया गया है और जो फार्मूला यहाँ पे सीखने वाले हो, इट हैज़ अ लिटिल डिफरेंस. जो वर्क हम 9th क्लास में बात करते हैं, दैट इज सिंपली F इंटू एस, राइट ना? है ना? बट इन दिस सिनेरियो द वर्क इज नॉट F इंटू एस. कहने का मतलब क्या है? देखो, फोर्स तो तुम ऊपर लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? एक्स्ट्रा ब्लॉक का राइट साइड में. अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे वर्क डन विल नॉट बी F इंटू एस सिंपली, provided that both F and S are in the same direction. Both force and the displacement are in the same direction. तभी then and only then the work done will be F into S. अब what will happen if the forces and the displacements are not in the same direction, right? तो अब एग्जाम्पल लेके मैं तुमको दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करो. ठीक है? इमेजिन करो मेरे पास में सिंपली एक ब्लॉक है. लेट्स से द मास ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू 20 kgs. Right, and I'm applying a force F is equals to 60 Newton.
बराबर अक्षरा. I have to find the work done in first 3 seconds. Work done by the force in first 3 seconds. बता सकते हो कितना आएगा? सबसे पहले चेक करो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है अक्षरा. यस सर. तो सिंपली फार्मूला क्या होगा? F इंटू एस. समझ रहे? इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट. तो अब मुझे बताओ क्या फोर्स का वैल्यू मेरे पास है? यस. डू आई हैव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 seconds? नो. कैन आई फाइंड इट सोनिया? यस सर. What will be the value of displacement in first 3 seconds? चलो बताओ. 0. Okay. And what is the value of A? You can find it, right? Yes sir. So see, in this scenario, the block is starting from the rest now. So you can consider the initial speed of the block to be 0. You can find the acceleration by the formula F equals to ma. It's clearly visible that the acceleration of the block is going to be 3 meter per second squared, right? Now that you have the acceleration, you can simply apply the formula S equals to half at squared, right? And it's told that you have to find the displacement in the first 3 seconds. So put the value of time as 3, put the value of acceleration as 3, and you can simply find the displacement. Can I say it's 27 by 7 meters, Sumya? Yes sir. Okay. So 27 by 2 now. 27 by 2 meter per second. 13.5. 13.5. So again I have to multiply that with the force now. So F into S is my final answer. So let's just calculate it, okay? चलो बताओ कृष्ण क्या करूँ मैं? Okay. So I'll tell that I'll first check is the force and the displacement in the same direction. Agar ha, then and only then I can apply this formula, or else I cannot apply this formula. याद रखो, because it's the standard definition of the work itself. Huh? So in this scenario, the force and the displacement both are in the same direction, right? So I can apply the formula of W is equals to simply F into S, the multiplication of these two. Now, I have the force as 60 Newton acting throughout the motion. I don't have the value of displacement. So for the displacement, I have to find the distance. Chalo. So I will apply the formula S equals to UT plus half AT ka square. Right, Krishna? So I have told you that the block is starting from rest. So I'll say that the value of U or the initial speed is 0. I'll substitute this value in the above formula and I will get that the distance is nothing but simply half times of acceleration times time ka square. So this is nothing but half times. I have to find the acceleration now. तो चेक करो वर्क निकालने के लिए एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा अपने को अलग से, ठीक है. सॉरी, वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ा, तो अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे. सो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा कृष्णा? F इक्वल्स टू एम ए, राइट. सो फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. The force was 60 Newton, the mass was 20 kg, thus I found out the value of acceleration to be 3 meter per second square. I'm going to substitute this value in this scenario. The value of acceleration over here was 3 meter per second squared. I'll substitute that. And the time asked to me was first 3 seconds, so I will substitute the value of 3. So the distance or displacement is nothing but 27 divided by 2 meters, right? So I'll substitute the value of displacement in the above equation. So the work done is nothing but 60 times of displacement, that is 27 by 2, and which is nothing but 2 ones are 2. This is nothing but 30 multiplied by 27. So I can simply say that the work done is nothing but 810 joules. Understood? So it is only valid when the force and the displacements are in the same direction. Now what will happen if the force and displacements are not in the same direction? So let's see that. But before that, I want you to memorize one more thing as well, that work is a scalar quantity. It's not a vector quantity. So work is a scalar quantity. मतलब सिर्फ इसका magnitude रहेगा, work का कोई direction नहीं रहता. चलो अब आगे चलता है. What will happen if the displacement and the forces are not in the same direction? So I am taking one more example. चलो. So let's say the mass of this block is again 20 kgs. And in this scenario, I am applying the force of, let's say, F equals to 100 Newton, or let's say 120 Newton. चलो 120 नहीं निकालेंगे. F equals 200 Newton in the direction which is 60 degrees from the horizontal.
Again, my question is that find the work done. Find the work done in first 4 seconds. In first 4 seconds. Chalo. Now my question, Akshara. Is the displacement of the block in the same direction as that of the force applied on it? No, sir. No. So if the direction of force and the displacements are not same, then what will I do? Again, my simple rule states that do one thing. If you want to really find out the work, तो एक काम करो, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, ठीक है? So which is easier for me, Soumya, the displacement of the block or the force exerted by the block? Directions बताओ. Easy direction कौन सा है? Displacement. So I will do one thing. I will just hold the displacement. अब मैं क्या करूँगा? I will try to check कि क्या उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? अंडरस्टूड? अगेन आई एम आस्किंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज वन ऑफ द फॉलोइंग. और एक बात याद रखो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तुम डिस्प्लेसमेंट को ही तुम पकड़ के चल सकते हो. अभी इस केस में भी मैंने डिस्प्लेसमेंट को ही पकड़ा है. सो अब चेक करना तुमको ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. अगर हाँ, तो कितना कर रहा है. अगर तुम निकाल लिया तुमने कि कितना वो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उतना ही फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क डन. समझ रहे हो? अगर उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, देन यू सिंपली से दैट द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स इज जीरो. समझ रहे हो? तो अगर ये फोर्स मान के चलो बिल्कुल वर्टिकल में होता सोम्या और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में होता, तो वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स वुड हैव बीन जीरो. But since this force is not in the vertical direction, I can say that there might be some of this force acting in the horizontal as well, right? ना अब निकालूंगा कैसे? That's the issue. कैसे निकालूंगा सोम्या? क्या करूंगा कृष्णा मैं यहाँ पे निकालने के लिए? Components, right? Yes, sir. So I will resolve the force. So the first component will be in the right side. The second component will be in the vertically upward direction. अभी यहाँ पे वेक्टर्स का ज़रूरत पड़ा है ना. अगर ये फोर्स है 200 न्यूटन अक्षरा, if the angle is 60 degree, can you tell me what will be the component of this value? Value of this component? Cos 60. Very good. So f times of cos 60. So this is nothing but the value of force was 200 multiplied by cos 60 is nothing but 1 by 2. So I can simply say that there is this 100 Newton का force acting in the right side. अब जो दूसरा फोर्स बचा है अक्षरा, what will be the value of this component? F Sin 60. sin 60. Can I directly write that the value of this component will be 100 root 3 Newton? Yes, sir. Now my question is that Krishna, ये जो 100 root 3 का force है, is this creating any impact in the horizontal direction? No. No. So can I say that the effect of this force 100 root 3 Newton is zero in the horizontal direction? Yes, sir. So if that is so, can I also say that the work done by this force in the horizontal will be zero? Yes, sir. Right now? And in the another scenario wherein this is a 100 Newton force acting in the horizontal direction itself, purely horizontal, right? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सोम्या? हॉरिजॉन्टल में. फोर्स भी किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में. अब डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा, जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, आई एम टेलिंग लेट्स से कुछ जो भी सम रैंडम डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ गया, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. फोर्स 100 न्यूटन वाज आल्सो एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. आई विल जस्ट वेरीफाई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है एस, क्या ये 100 न्यूटन की वजह से ही आया है सोम्या? Yes, sir. बस. तो अब इतना अगर हो गया तो बात खत्म. वी विल सिंपली राइट दैट द वर्क डन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना था? 100 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो हम निकालेंगे, ठीक है? तो जो भी आंसर आएगा वर्क डन में हम ऐसे निकाल लेंगे. तो यहाँ से तुमको इतना तो पता चल गया ना कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी जस्ट वॉन्ट टू सी द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात खत्म, राइट? तो अगर कोई फोर्स परफेक्टली या प्रॉपरली अलाइंड नहीं है किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स, और हम वो कंपोनेंट लेंगे जो परफेक्टली अलाइंड है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, राइट ना? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में था,
मेरा जो फोर्स था वो थोड़ा सा इंक्लाइन पे था, राइट ना, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा 200 फोर्स नहीं लिया है, मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाले, इसके दो कंपोनेंट्स आए, ये पहला वाला दूसरा वाला। अब पहले और दूसरे में से पहला कंपोनेंट ही है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से परफेक्टली अलाइंड है, अंडरस्टूड। तो मैंने वही कंपोनेंट उठाया है, अंडरस्टैंडिंग ना अक्षरा? Yes, sir. नाउ आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन द वेरिएबल्स। तो मान के चलो ये मेरा फोर्स 200 नहीं है, सिंपली एफ है। सो क्या होगा अक्षरा, और ये एंगल भी मान के चलो मेरा थीटा है। आफ्टर सम टाइम द डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक जो है वो एस डिस्टेंस से आगे गया है। तो बताओ मुझे वर्क कितना होगा। सबसे पहले मुझे बात बताओ सोम्या, वर्क कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? Horizontal. वेरी गुड। अगर वर्क हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो अक्षरा क्या इज इट कंपल्सरी फॉर मी टू टेक द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मल्टीप्लाई देम? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ ही दूंगा, इग्नोर ही कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई इंपैक्ट है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अगर होता तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से फोर्स वर्क निकालता, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट इग्नोरिंग, आई एम जस्ट ओमिटिंग all of that in the vertical direction. अभी मेरा major concern is in the horizontal direction. So Akshara, if this is the force F, if this is the angle theta, what will be the component? ये वाला F Cos theta. cos theta. Very good. Displacement मैंने already तुमको distance s दे के रखा है. Now tell me what will be the work done? W is nothing but force in the horizontal direction. क्या है force in the horizontal direction? Cos theta. F cos theta, right ना? This is nothing but F times of cos theta. Multiplied by what is the distance in the horizontal? S. तो बस बात खत्म। जो मेरा वर्क आएगा वो हॉरिजॉन्टल में ही आएगा एंड दैट इज नथिंग बट F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय S। अच्छा, तुमको डॉट प्रोडक्ट के अंदर वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट और नॉट, बट ठीक है चलो, एनीवेज इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन सम अदर वे। क्या देखो, चलो ठीक है, आई विल रीअरेंज द टर्म्स एंड टेल मी। ये हो जाएगा F इंटू S इंटू cos थीटा। कैन आई सी इट लाइक दैट अक्षरा? Yes, sir. अच्छा, अभी ना कुछ देर के लिए यहाँ से ध्यान हटाओ और एक बात ध्यान से सुनना, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला है अक्षरा? सोम्या, ए बी कॉस थीटा। कैन आई से ए बार डॉट बी बार? A bar dot B bar. वेरी गुड। सो ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी एफ एस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ अक्षरा? एफ बार डॉट एस बार। S bar. S bar. बात Cos theta. So this is my work done. W is equals to F bar dot S bar. Understood? So this is how we calculate the work done. तो एक बात याद रखना ऑलवेज, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम सिंपली रिजोल्व करके मल्टीप्लाई कर रहे हो या सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एफ एस कॉस थीटा। समझा नहीं समझा? Yes. ओके, नाउ इफ आई अप्लाई द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन अक्षरा, थीटा का वैल्यू क्या होगा उस केस में? If I apply the force and displacement in the same direction, what will be the angle of theta then? अच्छा ठीक है, ये एंगल जो थीटा ये क्या है कृष्णा? What is this theta? Angle between the Yes. Which vectors अक्षरा? कौन से vectors हैं? F bar and S bar are the two vectors. Understanding? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी सिचुएशन होगा मेरे को वर्क डन निकालने के लिए, आई विल फर्स्ट चेक वेयर इज द F bar, देन आई विल चेक वेयर इज S bar। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स मैंने चेक कर ली इंडिपेंडेंटली। नाउ आई विल चेक इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और सम रैंडम एंगल और 90 डिग्री और सम रैंडम एंगल और 180 डिग्रीज। अंडरस्टैंडिंग? इन जनरल इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ sin 0, sin 90, sin 180, सिंपली तुम सब्सटीट्यूट करो और बात खत्म। सॉरी, cos 0, cos 90, cos 180। ओके, बस बात खत्म हो जाएगा। यू विल जस्ट सिंपली सब्सटीट्यूट एंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, बट याद रखना इतना कि वर्क डन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ गिवन डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो अगर कोई फोर्स बिल्कुल डायरेक्शन के साथ में अलाइन नहीं है, वी सिंपली रिजॉल्व दैट, और इवन वी सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अंडरस्टैंडिंग? नाउ वी विल कैलकुलेट सम ऑफ द क्वेश्चंस टू फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द ब्लॉक्स। फाइंड द वर्क डन by the force F। चलो, नंबर 1,
So this is my block. ठीक है? I'm applying the force in this direction. So let's say this is my force F. ठीक है? And it is acting in the direction 45 degrees to the horizontal. Let's say the mass of the block M equals to 20 kgs, right? And the force applied was approximately, I'll tell you, 400 Newton. चलो, डिस्प्लेसमेंट में मैं तुमको दे रहा हूँ. लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक बी 8 meters. अब फाइंड आउट करो वर्क डन बाय द फोर्स. 600 हाउ मच? 1600 J. ओके, लेट्स सी. कैसे किया अक्षरा? 600 under root 3. रूट 3. ओके, लेट्स सी. सो द फॉर्मूला इज नथिंग बट सिंपली एफ बार डॉट एस बार, राइट? तो तुमको जैसे करना है तुम वैसे करो. इट्स ऑल अप टू यू. सो इफ यू वांट टू रिजॉल्व द फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर कंसेप्चुअली चलना है तुमको तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले 3-4 क्वेश्चन जो है तुम डायरेक्ट कंसेप्चुअली चलते जाओ. ठीक है? एज यू गेन सम टाइम, एज यू गेन सम एक्सपीरियंस, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वर्क डन. तो अभी फिलहाल के लिए ना आई एम ऑल्सो गोइंग विद द कंसेप्ट. तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं. अक्षरा, इन विच डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक? Right, sir. हॉरिजॉन्टल. ओके, राइट. अब मेरे को बताओ, इज दिस फोर्स 400 न्यूटन एक्टिंग परफेक्टली इन द हॉरिजॉन्टल? No. नो. तो क्या करेंगे? हम उतना ही फोर्स लेंगे जो जितना हॉरिजॉन्टल में एक्ट हो रहा है. कितना एक्ट हो रहा है? कैसे निकालेंगे इसका कंपोनेंट, राइट? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है अक्षरा? F cos theta. F cos 45. So can I directly write F into 1 by root 2? Yes, sir. So can I write the force is nothing but 200 root 2 Newton in the horizontal direction somewhere? After simplification, right? 400 into 1 by root 2. Simplify करो, 200 root 2 आ जाएगा in the right side. Now I have the displacement as 8 meters. I have the force as 200 root 2 Newton in the horizontal direction. I will simply write the work is nothing but 200 root 2 into 8. या फिर तुमको ऐसे नहीं लिखना, you can write directly at F cos theta multiplied by the displacement in the horizontal, or you can even write it at F bar dot S bar. Understood? All up to you. तुमको जैसे लिखना है वैसे लिखो. ठीक है? I'm taking the second scenario in which this is my block. ठीक है? Let the mass of this block. चलो ठीक है, mass को तो कोई ज़रूरत नहीं है as such. This is the displacement of the block. Let's say S equals to 10 meters. 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है ब्लॉक ने आगे जाके यहाँ से यहाँ तक. और जो फोर्स लग रहा है ना, द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. लेट द एंगल बी 30 डिग्रीज अगेन, और लेट्स से 60 डिग्रीज अगेन. एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग, मैं कितना बोल रहा हूँ ये, लेट्स से 100 न्यूटन. फाइंड द वर्क डन. अक्षरा, क्या करूँगा मैं? सबसे पहले चेक करूँगा डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में, राइट? So if the displacement is in the horizontal direction, I have to check if the force is acting perfectly in the horizontal direction or not. तो क्या पूरी तरह से horizontal में aligned है ये force अक्षरा? No, sir. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उतना ही force लेना पड़ेगा जितना force horizontal में aligned है. तो कैसे लूँगा? I will simply resolve the force as well, right? So ये होगा force का resolution vector in the right side. दूसरा vector किधर आएगा उसका? In the downward direction. Now if the force is 100 Newton, if this angle is 60 degrees, tell me what will be the value of this component? 100 cos 60. Can I directly write as 50 Newton? Yes, sir. So the work done कितना आएगा? F into S ना? So the force was 50, the displacement was 10, therefore the work will be 500 Newton, right? Now let's take one more question. Sorry? You're telling something, Akshara? Chalo. Now, so this is my force vector. Let's say the value of force is again 100 Newton. Again I'm telling you this angle now, this angle is 60 degrees यहाँ पे, and this is the displacement in the horizontal. So let's say the displacement is nothing but 20 meters. Calculate the work done. कैसे करूँगा सोमिया? I have to find the. How will I do this? We'll find another.
Very good. So this 60 degree is not the angle between the vectors, huh? So if you want to find the net work, you have to find the angle between the vectors. अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो चेक करो. Again the same steps. Displacement किधर है? Horizontal में. क्या फोर्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल में है? नहीं है. तो क्या करेंगे? फोर्स का वही वैल्यू लेंगे जो हॉरिजॉन्टल में है. तो कितना वैल्यू हॉरिजॉन्टल में है अक्षरा? We will resolve the force as well. So this is the horizontal component of that force and this is the vertical component of that force. So if this angle is 60 degree, you can say that this angle will be now 30 degrees. अगर तुमको ऐसे 30 डिग्री वगैरह नहीं निकालना है, so then you can directly go for f cos 60, f sin 60. तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, ठीक है, give me a moment. चलो हाँ. So if this is f, then this definitely will be f cos 60, right? और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इसका? f sin 60. समझ रहे हो? अब कौन सा वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे हम सोम्या? f sin 60 को, राइट ना, बिकॉज इट्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट द वर्क इज नथिंग बट, बोलो, फोर्स जो कि है f sin 60 multiplied by the displacement in the horizontal direction, which is 20. So the value of force was 100. The value of sin 60 is nothing but root 3 by 2 multiplied by the value of distance is nothing but 20. So you can directly write that the work is nothing but 1000 root 3 joules. समझो? अगर तुमको ऐसे नहीं करना, यू हैव टू सिंपली फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ना. समझ रहे हो? या फिर सिंपली इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, सिंपली एक काम कर लेना, w इज नथिंग बट f bar डॉट s bar. बात खत्म. सो आई कैन जनरलाइज दिस फॉर्मूला फॉर एनी रैंडम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. समझ रहे हो? अभी ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है कृष्णा? आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग. ये जो फार्मूला है इसके अंदर f bar इज द फोर्स, राइट? व्हाट इज s bar कृष्णा? व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट. किसका डिस्प्लेसमेंट सुनिए? किसका डिस्प्लेसमेंट? सॉरी अक्षरा, इस फार्मूला के अंदर f इज द फोर्स अंडरस्टूड. व्हाट इज s? किसका? ऑब्जेक्ट का. कौन से ऑब्जेक्ट का? ब्लॉक. ब्लॉक का. चलो ठीक है, अभी ब्लॉक नहीं लेता हूँ मैं, कोई एक स्मूथ सरफेस लेता हूँ या कोई एक इलास्टिक सरफेस लेता हूँ. लेट्स से स्पंज. स्पंज है ना? स्पंज देखा तुम लोग ने सबने? यस सर. अभी ना मैं स्पंज को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से विद द फोर्स f. अब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन कृष्णा? जैसे ही मैं पुश करूँगा ये पॉइंट पे, क्या स्पंज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अक्षरा? देखो स्पंज तो बिल्कुल वॉल से अटैच है अभी यहाँ पे. कृष्णा, क्या स्पंज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो क्या वर्क डन जीरो होगा इस सिनेरियो में? नो. बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ना सौम्या? स्पंज फिल. Sponge will? compressed. So what? What if the sponge is compressed? I'm telling you, see, the simple formula for the work is nothing but f bar dot s bar. Or you can also say that it is nothing but fs cos theta. So by that logic, the displacement of the sponge is zero. As the Krishna stated that s is the displacement of the object itself. Huh? So the object is sponge. The displacement of the sponge is zero. Zero है ना अक्षरा इसका? Initial point और final point same है ना दोनों का? Yes sir. हाँ. If the displacement is zero, then work should also be zero ना? But you're telling that the work is not zero. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? The actual problem is that it is not the displacement of the object Krishna. It is the displacement of the point of application of force. याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ. जिधर फोर्स लगा रहे हैं ना उस पॉइंट का फोर्स, उसका उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट. और you can even simply say that the displacement of the force itself. हाँ, कुछ भी कह लो. It's all up to you. So in the formula, W is equals to F bar dot S bar. S bar is nothing but the displacement of the force itself. Force कह लो या point of application of force कह लो. All the same. Huh? So F bar is the displacement of the force, not the object. Huh? Force कह लो या फिर point of contact कह लो, जिधर पे टच हो रहा है. Point of contact. अब लेट्स वेरीफाई इट अगेन. हाँ कृष्णा, इनिशियली फोर्स का पोजीशन किधर था कृष्णा? यहाँ पे, राइट? राइट. अब जब स्प्रिंग ये जो स्पंज है ये जब कंप्रेस होगा
तो फोर्स का पोजीशन कैसे ऐसे कंप्रेस होगा ना, स्प्रिंग, राइट यस राइट। तो अब फोर्स का पोजीशन क्या देख चेक करो, क्या पोजीशन सेम है फोर्स का यहाँ पे? नहीं। तो फोर्स का पोजीशन कह लो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पोजीशन कह लो, वो बदल गया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर में था, अभी इधर में चला गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वही डिस्टेंस को हम एस मान के चलेंगे एंड वी विल अप्लाई द फार्मूला डब्ल्यू इज नथिंग बट एफ बार डॉट एस बार। समझा? राइट। अब थ्रू आउट द डिस्कशन आज के क्लास में आई हैव केप्ट द फोर्स टू बी कांस्टेंट, और मैंने फोर्स को कांस्टेंट ही रख के डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सारा मैंने बताया तुमको। इन टुमारोज क्लास वी विल बी सीइंग व्हाट विल हैपन इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। समझ रहे हो? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर वर्क का सिनेरियो क्या होगा, और उसके लिए इंटीग्रेशन लगने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो इफ़ यू वांट, द लेक्चर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जाओ उसको रिविजिट करो, रिवाइज करो, सारे पीडीएफ्स वगैरह मैं भेजता हूँ ग्रुप के ऊपर इफ़ यू वांट। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू लिसन दैट सर वी डिड नॉट कवर द इंटीग्रेशन एंड वी डोंट नो दैट। अंडरस्टैंडिंग? समझो? ऑल्दो आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सिंगल लेक्चर, बट इट इज़ बेटर ऑलवेज ओके टू अंडरस्टैंड दैट बाय योर सेल्फ। ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। See, if you are understanding that, that means your level is next level. Nobody would say that you are a class 9 students. समझ रहे हो? क्लास 9 के बच्चे को कोई बोलेगा ही नहीं तुमको, आफ्टर लुकिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन कवर्ड सो फार। ओके, चल ठीक है, फॉर नाउ इट्स मोर देन सफिशिएंट। बस थोड़ा सा रिविजिट कर लो, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ऑल दैट स्टफ। इन टुमारोज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे पूरा कांस्टेंट था, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट दोनों भी ले लेंगे कल के क्लास में। ठीक है? So if you have any doubt, you can ask me, or else we can stop here for today.